जैसे ही वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वी वर आस्क्ड, जस्ट वन सेकंड, क्या मैसेज है? अच्छा, प्रेजेंट. अच्छा, we had to sort of revise what oxidation was. And I told you that oxidation is the loss of electrons. So here you can see all the electrons being lost. जब भी whenever something loses electrons, the oxidation state increases. मतलब चार्ज ज्यादा होता है, पॉजिटिव हो जाता है. Sodium losing electrons, chlorine losing electrons. No, this one is gaining. Charge कम होता है, तो that's a gain of electrons. ये भी charge ज़्यादा हो रहा है, so that is oxidation. It lost electrons. Then we did some redox reactions. Okay, you would have redox reactions जहाँ पे you can see chlorine going from 0 to -1. That means कि अगर चार्ज कम हो रहा है, ठीक है, it is decreasing. That means कि the substance is gaining electrons. Vice versa, here you have sodium which is 0 and it goes to +1. इसका मतलब है कि चार्ज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, it's becoming more positive. That means कि there's a loss of electrons. So remember that. फिर I said कि a lot of times the charge would not be given to you. जिस तरह ये वाला क्वेश्चन था, MnO4 -1. A lot of time the charge would not be given to you, so you have to figure out the charge of the element. And remember, you always talk about oxidation state. Whenever you talk about oxidation state, so you talk about the charge of the element. जैसा Fe का अगर कोई oxidation state पूछेगा, तो you'll say कि it's +2. 5 Fe +2 का combined charge नहीं बताते, ठीक है. Similarly, if somebody is going to ask you what is the charge on oxygen over here, you're going to tell the charge of one oxygen atom, not 4 oxygen atoms. So remember that whenever you mention oxidation state, it's only for the single atom, the single element, not for the combined thing. Acha, so we talked about rules for oxidation states. जिसके अंदर I said कि how do you figure out the charge if it's a compound? I said कि a neutral element, the oxidation state is always 0. Of element, remember element. Element का मतलब है कि it's not combined with anything. And if it's a compound, if it's combined with something, so group 1 would be +1, group 2 would be +2, group 3 metals would be +3. फिर था कि transition metals का कोई idea नहीं. No one knows unless it's provided to you. Fe could be +2, it could be +3. So it's usually written in the question or the example. फिर I said कि oxygen is usually -2. Most of the time it's -2, except a few exceptions like H2O2. And hydrogen is also mostly +1, except a few cases like metal hydrides where it's -1. Then I had group 7. Group 7 ka tha कि it's usually -1. Not always, but usually. F is always -1. तो ये रूल्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट के, और इनको यूज करते हुए वी हैड टू फिगर आउट. आई गिव यू दिस असाइनमेंट. ये असाइनमेंट की थी कि एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इस असाइनमेंट के. कि आई हैड दिस H3PO4 मॉलिक्यूल. तो आई हैड टोल्ड यू कि फास्फोरस का फिगर आउट करो. व्हाट इज द चार्ज ऑन फास्फोरस? हाउ वुड यू डू दैट? I said कि add up the oxidation state of all the elements, and since it's a neutral molecule, तो इसको ना आप equal to 0 put कर दो क्योंकि it has no charge. तो hydrogen in the table is +1, ठीक है. H is +1. ये ऊपर टेबल के अंदर ना second last लिखा हुआ भी है कि this is H and it's going to be +1 in its compound. So H is +1, and since there are 3 hydrogens, so that would be +1 into 3. Phosphorus, only one of them, और phosphorus का कोई charge नहीं पता, so let's call that X. And oxygen is -2 according to the table. ठीक है, look at the table, it's always -2. But since there are 4 oxygens, so that's -2 times 4. And this entire thing, put that equal to 0 because the overall molecule is neutral. If you solve for X, X comes out to be, अगर आप solve करो ना, it's going to come out to be, किसी को पता है क्या value आ रही है? Can anyone do the calculation? +5. ठीक है, so it's coming out to be +5. तो इसका मतलब है कि you figure out कि phosphorus over here is +5. Oxygen over here, वो तो टेबल से वैसे ही पता था कि it's -2. Hydrogen भी टेबल के accordingly it's always +1. So you're able to figure out the unknown element. एक और एग्जांपल के यही वाला.
Na2SO3. So when you have Na2SO3, तो Na is +1, group 1 में है. That's +1 into 2. There are 2 sodiums. अगला क्या है? सल्फर. सल्फर का कोई आइडिया नहीं. It's not given in the table. So that's X. और फिर आपके पास oxygen है. There are 3 oxygens, which is oxygen according to the table is -2 into 3. इस सारे को sum up करो और equal to, क्योंकि overall molecule neutral है, put it equal to 0. Find what X is. इसमें क्या आ रहा है X की value? Anyone? +4. +4. ठीक है, so it's +4. तो यहाँ पे sulfur is +4, oxygen is -2, Na is +1. अच्छा, anyways, this way you're kind of able to predict what the oxidation states of different elements are. मतलब कुछ की तो टेबल में गिवन है डायरेक्टली, बाकियों की यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट. ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रॉब्ली थोड़ा सा मुश्किल था कि इसको अगर फिगर आउट करें तो एल्यूमिनियम +3, कितने एल्यूमिनियम है? 2 है. अच्छा, कार्बन इज अननोन, सो दैट्स X. अच्छा, इसमें फिगर आउट करो कार्बन है कितने? दे 3 कार्बन्स, so that's X multiplied by 3, and oxygen is -2. कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? Look at the oxygen, that it's CO3 thrice, so that's a total of 9 oxygens. 9. ठीक है, और ये भी न्यूट्रल है. इसका क्या आंसर आया था? +4. ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन ओवर हियर इज +4, ऑक्सीजन इज -2, Al इज +3. इन दो का पहले ही पता था, इसका पता लग गया. ठीक है, so this is how you're going to figure out oxidation states in reactions. And so this is how you're going to figure out redox reactions. Let's just do a few questions. Let me एक सेकंड इसी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं. लेट मी शेयर दिस. एक सेकंड, क्वेश्चंस मैं निकाल लेता हूँ थोड़े से. ये शायद मिल जाए. एक सेकंड, जस्ट क्विकली. अच्छा, इसके अंदर भी हो सकते हैं. जस्ट 1 सेकंड. सर, यस, मैं गलती से पॉजिटिव का साइन लगाना भूल गई थी. नहीं उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस लिखते हैं. ठीक है, वरना इतना इशू नहीं है. मतलब अगर प्लस ना लिखा ना, जैसे मतलब आप 4 लिखते हो ना, तो 4 ही होता है ना. अंडरस्टूड है कि वो +4 है, तो प्लस लगाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इट्स बेटर टू राइट प्लस. अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड. इसमें एक सेकेंड, लेट मी ट्राई एंड फाइंड अ वर्कशीट. ठीक है, एक मिली है. ये थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों को. खैर इतने हाँ चलो ठीक है, इससे काम चल जाएगा. अच्छा, स्लाइटली पहला पेज ही चाहिए. हाँ ठीक है. अच्छा, सो दिस वुड प्रॉब्ली शेयर हो रही है ना? हाँ. अच्छा, दिस इज गोइंग टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन. इसको हटा देते हैं. अच्छा, redox. I'll give this as an assignment as well, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा questions हैं. ये तो हमने थोड़े से figure out कर लिए थे. The first part. अच्छा, I'll send this as an assignment. ठीक है. तो ये वाला ये वीकेंड के ऊपर करना होगा. इसके अंदर वो कह रहे हैं assign oxidation numbers to each element in the compound. तो we did some questions, but you can sort of try and practice this, and you can figure that out. अच्छा, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि in these questions he's asking कि assign oxidation numbers to each element. बल्कि अच्छा, determine if each change represent oxidation. इससे start करते हैं. ये थोड़ी सी blurred है, but I think that's this enough. It's enough to see properly.
अच्छा, let's start with the Cr2O7 2 minus. पहले everyone try and work this out. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें, -2 है. Cr की निकालो जल्दी से, कौन निकालेगा, क्या होगी? Okay, who's going to figure this out? सारे ट्राई करो. Okay, it has 7 oxygen, so that's -2 multiplied by 7. Cr chromium, कोई आइडिया नहीं, it's not given in the table. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ना, वो मैं अलग से पिक्चर भी भेज देता हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. ये व्हाट्सएप -7 -7. जी. अच्छा, एक सेकेंड, ये मैं सर 6 नहीं आ रहा. देखते हैं अभी. सर मेरा भी 6 आ रहा है. ठीक है, ठीक है. तो ज्यादातर लोगों का 6 आ रहा है. और किधर गए, वापस आते हैं इस पे. अच्छा, सो मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का किया था. -2 × 7. Cr 2 है, Cr का नहीं पता. Cr is X, but there are 2 Crs. ठीक है, वो 2. एंड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 है, सो दिस शुड बी इक्वल टू -2. तो इसको अगर केयरफुली सॉल्व करो, इट शुड कम आउट टू बी 6. ठीक है, जिसका मतलब इसको सॉल्व करो, ये -14 है, उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो +14 -2 वुड बी 12 एंड इट्स 2x. तो x के लिए अगर सॉल्व करोगे तो इट्स गोइंग टू बी 6. ठीक है, तो जिन्होंने 6 निकाला है दैट्स करेक्ट. बाकी देख लो कि मिस्टेक क्या की है. अच्छा, तो Cr का पता लग गया, +6. ऑक्सीजन जो है वो पहले ही पता था, -2 है. इसका निकालो. H का पता है +1, O का पता है -2, तो N का क्या होगा? अच्छा, रिमेंबर इस 3 का कुछ नहीं करना, इस 3 को इग्नोर करो. ये तो बस, ये जो 3 था ना, ये बस बैलेंसिंग के लिए था. इसको कहीं बीच में ना लेके आना. ठीक है, इट्स जस्ट HNO2. बल्कि इसको मैं हटा भी देता हूं ताकि आप कैलकुलेशन पहले कर लो. अच्छा, इट्स जस्ट HNO2. ट्राई एंड फाइंड आउट N क्या है. H और O पता है हमें. H +1. सर 3. ठीक है, सो इट्स +3. अच्छा, यहाँ पे H वैसे ही +1 दिया हुआ है, तो वो तो होता भी +1 है. दैट्स फाइन. Cr का यहाँ पे चार्ज पहले दिया हुआ है, +3 है, तो मतलब इट्स ऑब्वियसली +3. इस पे निकालो. O का पता है -2 है, दूसरे का निकालो क्या होगा. सर जो N या कोई भी किसी भी एलिमेंट से पहले वाला जो नंबर है, हम इसे इग्नोर करते हैं. हाँ, इस मतलब ये बैलेंसिंग के लिए ना, उसको इग्नोर करो. बेसिकली तो नाइट्रेट आयंस है ना. सर ठीक है, HNO2 वाला सॉल्व कर दो. वो करता हूँ. ये है ना HNO2. तो H क्या था, इट्स +1 टेबल के अकॉर्डिंगली. N क्या है नहीं पता हमें, टेबल पे नहीं लिखा हुआ. X और ऑक्सीजन क्या होता है -2, और वो इंटू 2 हो जाएगा. ठीक है, सर उधर वाली एन और इधर वाली एन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट होंगी. हाँ मतलब देखो, हर एक एलिमेंट और मतलब एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड का ना आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. ठीक है, उसी से तो पता लगेगा कि क्या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किया है. मतलब ऑक्सीडेशन चेंज. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो पता लगता है ना. ठीक है, तो हर कंपाउंड डिफरेंट है. शजीन, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो. ये क्लियर. हो गया सॉल्व. थैंक यू. ठीक है, ये NO3 का किसी ने पता किया उसमें +6. +6. नहीं, इस पे सॉरी, मेरे ख्याल से इसकी वजह से तो गलती नहीं की. ये मैं बता दूं, ये ओवरऑल चार्ज जो था ना इसका -1 था. मतलब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था ना, -1.
सर -7 आ रहा है। नहीं -7 भी नहीं, Five. सर 5 है। 5. ठीक है 5 सर। ठीक है। n कर भी लेते हैं, n जो है वो अननोन है, x हो गया, ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है, 3 है, और ये सारा एड अप होके इक्वल टू -1 होगा। तो इसको सॉल्व करो, x कम्स आउट टू बी 5। ठीक है 5 ठीक था। अच्छा यहाँ पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसी टेबल में गिवन है, ये +1 है, ये -2 है। अच्छा खैर आप लोगों को इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोगों को थोड़ा सा इससे सिंपल ही आएगा, लेकिन वो बेसिक रूल्स वो कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। अच्छा अब उसने पूछा क्या था, अब मेन जो वो चीज पूछेंगे ना, वो पूछेंगे कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी रिड्यूस हुई है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसका चार्ज इंक्रीज हुआ है। मुझे इन सारों में बताओ कि कौन सा एलिमेंट है जिसका चार्ज इंक्रीज हुआ है। क्रोमियम। नहीं देखो, क्रोमियम +6 था ना पहले, अब क्या है? N का हुआ है सर। ठीक है, क्रोमियम को डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमियम +6 था, प्रोडक्ट्स के अंदर आके ना वो +3 हो गया, तो इसका मतलब है वो रिड्यूस हुआ है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। और n को देखो तो n जो है ना वो था पहले, क्या था n, यहाँ पे ना +3 था, वो दूसरी साइड पे जाके ना n जो है वो +5 है। तो इसका मतलब है कि चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो इसका इट हैज ऑक्सीडाइज्ड, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ये क्लियर है सारों को? सर ऑक्सीजन का क्या फिर? किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चार्ज चेंज नहीं हुआ, -2 था, यहाँ पे भी -2 था, फिर इसके अंदर भी NO3 में भी ऑक्सीजन -2 था, तो ऑक्सीजन का तो चार्ज चेंज नहीं हुआ ना। ठीक है अनुषा, क्लियर है? जी सर। और एज को भी कुछ नहीं हुआ, एज +1 था, हर जगह +1 है, मतलब रिएक्टेंट्स में भी +1 है, प्रोडक्ट्स में भी +1 है। इसका मतलब है ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना कोई उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो वहीं का वहीं है। तो रीडॉक्स रिएक्शन के अंदर ना आपने मेन जो चीज प्रिडिक्ट करनी होती है ना, दैट इज कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज भी है। इक्वेशन आपके सामने होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी प्रॉब्ली, लेकिन इससे थोड़ी आसान होगी। उसके अंदर जब आपको चार्जेस पता लग जाए ना, कभी कभार तो चार्जेस सामने लिख के दिए हुए होंगे, खुद ही दिए होंगे, आपको बस पता करना होगा। अगर नहीं दिए तो फिर ये मेथड निकाल के ना यूज करके आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, और एंड रिजल्ट इज आपने पता करना है कि जी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा ना वो मोस्ट लाइकली इस तरह का आएगा, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस तरह का क्वेश्चन की है। इसके अंदर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो मैंने सामने रखा है क्योंकि इसके अंदर तो वो सब कुछ क्लियर है कि Fe+2 था, +3 हो गया, नहीं सॉरी +2 था तो Fe हो गया। तो मतलब यहाँ पे Fe का कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो इसका चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है, तो दिस इज रिडक्शन। और Al पहले क्या था, न्यूट्रल था, 0 था, वो आगे जाके क्या हो गया, +3, जिसका चार्ज जो है ना वो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन मोस्ट लाइकली ये आएगा, बट यू कैन गेट, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपके कोर्स में है, ठीक है, यू कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एज वेल, बट नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दिस। ठीक है, इज दिस क्लियर? सर आपकी आवाज Yes. बहुत हल्की है, आप माइक थोड़ा सा करीब कर। अच्छा अब क्लियर है? जी सर। जी सर। तो अच्छा फिर इसका ना एक शॉर्टकट होता है। अच्छा दो तीन चीजें, दो बड़ी मेन चीजें पहले मैं बता दूं। वन इज कि ये याद रखना कि ऑक्साइजिंग एजेंट कौन होता है। जो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड, ये जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा ना, ये किधर चला गया, अच्छा जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा दैट्स द ऑक्साइजिंग एजेंट। ये इनके नाम होते हैं, ठीक है, एक ऑक्साइजिंग एजेंट होता है,
तो आपने देखना है कि किसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये अभी लेफ्ट पे देखो ना इक्वेशन, जो ए पार्ट ए है, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसको मैं ऑक्साइजिंग एजेंट कहूंगा। इनके नाम उल्टे होते हैं। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है ना, उसको जो नाम आप देते हो ना, यू कॉल इट दी ऑक्साइजिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो होता है जो ऑक्साइज हो रहा होता है। तो सब्सटेंस which is oxidized, तो ये नेम्स उल्टे हैं। जिसकी भी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्साइजिंग एजेंट है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट्स द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये लेफ्ट वाली इक्वेशन के ऊपर आपके पास कौन है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, HNO2 की, तो दिस मस्ट बी द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये लेबलिंग करेक्ट कर लेना, मतलब बाकी सब काम सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी फिगर आउट कर लेना, लेकिन जो एजेंट्स होंगे ना, ऑक्साइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो याद रखना उल्टा होता है। जो ऑक्साइजिंग एजेंट होता है वो एक्चुअली वो होता है जो रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है जो ऑक्साइज होता है। इनके नाम उल्टे इसलिए होते हैं कि ऑक्साइजिंग एजेंट खुद ऑक्साइज नहीं हो रहा था, अगले वाले को ऑक्साइज कर रहा होता है, खुद रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर है? लेबलिंग क्लियर है सारों को? अच्छा, फिर तो ये तो ऑक्सीडेशन, अच्छा ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एंड यू कैन वी गोइंग टू प्रैक्टिस दिस, ये मैं असाइनमेंट दे दूंगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा रिविजिट करता हूँ उसकी डेफिनेशन को। एक बस एंड में मैं बात ऐड कर देता हूँ कि कभी कभार ना एक आसान काम होता है जो कि, मतलब इस इक्वेशन को देखो, बड़ा टाइम लग गया मैं इस इक्वेशन के ऊपर ना, टू फिगर आउट के पहले हमने वी फिगर आउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन वी फिगर आउट के हुआ किया ना कि who lost electrons, who gained electrons. So man, it's kind of time consuming. Sometimes, not always, but this is a shortcut. कि अगर कोई आपसे ना पूछे कि where is oxidation happening, तो where is oxidation happening and where is reduction happening? So there's some shortcuts that you can apply. So I'm going to write down those shortcuts. ठीक है, remember सही तरीका ये है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, so you can use these other shortcuts as well. तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इंक्रीज इन द चार्ज, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू टू शॉर्टकट्स। वन इज कि इस लंबे प्रोसेस में पढ़ने की कभी कभार जरूरत नहीं होती, कभी कभार इट्स फेयरली ऑब्वियस कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है कि वेयर ऑक्सीजन इज गेन्ड। माइक प्लीज। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? आमना, आई थिंक योर माइक इज नहीं। मनूर, सर बंद हो गया। अच्छा, सो दिस इज अ शॉर्टकट कि without actually going into so much detail, अगर if you can see something gaining oxygen, and remember oxygen atoms, neutral atoms, तो that is oxidation। मतलब आपको वो सारा करने की जरूरत नहीं है, मतलब gain of oxygen is oxidation, मतलब वो करके भी आपको वही आंसर मिलना है, तो फायदा नहीं है इतना टाइम जाया करने की। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है, मुझे कोई बताया कि इसमें who's gaining oxygen? Well, look at carbon over here. Carbon is gaining oxygen. तो मतलब आप कर सकते हो वो सारी कैलकुलेशंस जो नीचे हमने की है ना, यू कैन डू दैट। लेकिन बाय जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशन एंड यू कैन सी कार्बन गेनिंग ऑक्सीजन, तो आपको वो शॉर्टकट है, ट्रिक है। ठीक है, यू फिगर आउट के ठीक है फिर कार्बन ही ऑक्सीडेशन हो रही होगी। एंड वाइस वर्सा देयर इज अनदर वन व्हिच इज के loss of hydrogen atoms is also
ऑक्सीडेशन। सर हाइड्रोजन भी तो एक ऑक्सीजन के अंदर है। किसका? हाइड्रोजन में भी तो ऑक्सीजन के हाँ, मैं वही अंदर कह रहा हूँ, ये इतना कोई परफेक्ट वो नहीं है, सिस्टम नहीं है इसमें। थोड़ा सा अगर वो चार्ज देखो ना, तो हाइड्रोजन क्या था यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन का चार्ज टेबल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कंपाउंड्स में, +1, यहाँ पे भी +1 है। तो अगर हम वो वाला सिस्टम देखें ना, ये जो नीचे चार्जेस निकालने वाला और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाला, तो टेबल तो कहता है हाइड्रोजन हमेशा कंपाउंड्स में +1 होता है, तो इसका मतलब है उसका तो चार्ज चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई। ठीक है, मेरे से आइडिया क्लियर है कि ये जो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना, ये कोई इतना जबरदस्त सिस्टम नहीं है, लेकिन वो बस तुक्के लगाने ना अगर जल्दी से, तो वो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। मतलब सही जो तरीका है ना, वो ये नीचे वाला है जो भी हमने किया था। दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट, मतलब कार्बन के लिए सही तरीके से वो अप्लाई हो रहा है कि कार्बन जो है वो इस प्रोसेस के अंदर ना हाइड्रोजन लूज भी कर रहा है एंड इट्स आल्सो गेनिंग ऑक्सीजन, तो वो दोनों काम कर रहा है। सो यू कैन कॉल दिस कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। ठीक है, मेरे से ये बात क्लियर है? जी अच्छा, इसी सर। तरह ये बाकियों में तो ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का बताओ, इस ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, व्हाट्स हैपनिंग टू नाइट्रोजन? इसका मैं उल्टा भी लिख देता हूँ, रिमेंबर वो रिडक्शन जो है ना वो इसका ऑपोजिट होगा। तो इस प्रोसेस के अंदर देखो व्हाट इज हैपनिंग टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की रिडक्शन। ठीक है, इट्स गेनिंग हाइड्रोजन। तो अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑपोजिट, इट्स रिडक्शन। तो आप ना नाइट्रोजन का इसमें फिगर आउट कर सकते हो कि इट्स अंडरगोइंग रिडक्शन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस करके भी निकाल सकते हो, वैसे भी तुक्का लगा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? ये जो लास्ट टू है, मानुष, इज दिस क्लियर? शजीन? जी सर। चलो ठीक है, आई एम गोइंग टू assign you questions। ये बस ये जो लास्ट दो है ना, इनका ख्याल रखना कि दिस इज नॉट ऑलवेज, ये बस तुक्के लगाने के लिए। ठीक है, वो जो पहले दो है ना जो रेड के अंदर लिखा हुआ है, दैट्स द करेक्ट टेक्निकल वे ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इसमें से ना मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप के ऊपर व्हेन आई गिव द असाइनमेंट। सही है, तो फिर ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, ओके देन, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।